ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میری شادی کو 1 مہینے کا وقت گزر چکا تھا۔ میں بہت خوش باش اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ میری بیوی بھی بہت اچھی تھی، مجھ سے بہت محبت کرتی تھی۔ ہم دونوں کی پسند کی شادی تھی، مگر کچھ دنوں سے اس کا رویہ میرے ساتھ بہت عجیب سا ہو گیا تھا۔ مجھ سے روکھی روکھی الجھی سی رہنے لگی تھی۔ اس کے انداز میں میرے لیے شگفتگی مفقود تھی۔ میں بہت پریشان تھا اور اس کے لہجے کو بدلنے کا سبب معلوم کرنے کی کوشش کرنے لگا، مگر میرے ہاتھ کوئی سرا نہیں آ رہا تھا۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ اسے ایک دم سے کیا ہو گیا ہے۔ سب کے ساتھ اس کا رویہ نارمل تھا، زندگی کے دیگر فرائض بھی وہ اچھے طریقے سے سر انجام دے رہی تھی، مگر جب میں اس کے پاس آتا تھا تو نہ جانے کیوں اس کا رویہ بدل جاتا تھا۔ اس کی آنکھوں اور چہرے پر مجھے خوف کا تاثر نظر آتا تھا، مگر میں اس کی وجہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ شروع میں اس بات کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان رہا، مگر پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری یہ پریشانی غصے میں بدلتی جا رہی تھی۔ ایک دن ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں صبح آفس میں جانے لگا تو وہ کہنے لگی کہ وہ اپنے امی ابو کی طرف رہنے کے لیے جانا چاہتی ہے۔ میرا دل نہیں کر رہا تھا، مجبوراً دل پر پتھر رکھ کر میں نے اسے اجازت دے دی تھی۔ اسے گئے ہوئے کچھ ہی گھنٹے گزرے تھے جب مجھے خالہ کی کال آ گئی۔ وہ بہت زیادہ غصے میں لگ رہی تھی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ شام کو میری طرف لازمی آنا۔ میں ان کے انداز پر حقدق رہ گیا تھا۔ مجھے کسی گڑبڑ کا احساس ہو رہا تھا۔ شام کو آفس سے چھٹی ہونے کے بعد میں سیدھا وہیں پر چلا گیا، مگر یہاں تو پوری پنچایت لگی ہوئی تھی۔ ساس سسر سالے سب لوگ موجود تھے۔ ان کے چہرے پر تناؤ صاف نظر آ رہا تھا۔ میں سلام کرنے کے بعد اپنی خالہ کے پاس بیٹھ گیا۔ سارے اداب اور مہمان نوازی ایک طرف رکھ کر خالہ غصے سے بولی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی پر ہاتھ اٹھانے کی؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ وہ مجھے اس کے علاوہ بھی بہت سی باتیں سنا رہی تھیں جن باتوں کا میرے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ خالہ کو شدید غلط فہمی ہوئی تھی۔ میں نے انہیں کہا، یہ سب کچھ جھوٹ ہے، غلط ہے، آپ عالیہ کو بلا کر اس سے پوچھ لیں۔ عالیہ نے بھی ان تمام جھوٹی باتوں کی تصدیق کر دی تھی، اور میرے لیے بھی یہ حیرت کا مقام تھا، وہ جھوٹ کیوں بول رہی تھی۔ اس کے بعد میں خالی ہاتھ گھر واپس آ گیا۔ گھر آنے کے بعد مجھے گھر والوں کی طرف سے بھی بہت سی باتیں سننے کو ملی تھیں۔ عالیہ نے میرے ساتھ آنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ ایک ہفتے بعد اس سے میرے امی ابو لینے کے لیے گئے تو اسے پھر گھر واپس آنا پڑا، مگر گھر آنے کے بعد بھی اس کا رویہ میرے ساتھ ایسا ہی تھا۔ جب میں نے عالیہ سے پوچھا کہ اس نے میرے بارے میں جھوٹ کیوں بولا، مجھ پر یہ تہمت کیوں لگائی کہ میں نے اس پر ہاتھ اٹھایا ہے، تو وہ زور زور سے چلانے لگی اور رونے لگی۔ میں اس کی اس حرکت سے ڈر گیا تھا۔ اگر گھر میں سے کوئی اسے روتے ہوئے چلاتے ہوئے دیکھ یا سن لیتا تو میں سب کی نظروں میں مجرم بن جاتا۔ بہت مشکل سے چپ کروایا تھا، مگر یہ سب مجھے بہت سوچنے پر مجبور کر گیا تھا۔ بچپن سے ہی ہمارے گھر میں عجیب و غریب معاملات ہو رہے تھے۔ میں ہمیشہ یہ سوچتا تھا کہ میری زندگی دوسروں سے مختلف کیوں ہے، اور بڑا ہونے کے بعد میں یہ سوچنے لگا کہ شادی کے بعد میری زندگی خوشگوار ہو جائے گی، مگر یہ خوشی عارضی ثابت ہوئی۔ میری ذاتی زندگی بھی عجیب سے عجیب تر ہوتی جا رہی تھی۔ اب تو میری بیوی نے میرے ساتھ کمرے میں رہنے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ جب میں نے اس سے اس بات کی وجہ پوچھی تو وجہ سننے کے بعد میں حق تک رہ گیا۔ اس نے بھی اسی جامن کے درخت کے نیچے سونا تھا۔ میں سر پکڑ کر رہ گیا تھا۔ یہ جامن کا درخت تو میری زندگی کے لیے عذاب بن چکا تھا۔ میں بچپن سے ہی اس درخت کے بارے میں عجیب و غریب باتیں سن رہا تھا۔ کوئی کہتا تھا اس پہ چڑیل ہے، کوئی کہتا تھا اس پہ اسیب ہے، غرض کہ ہمارے محلے اور خاندان میں اس کے بارے میں بہت سی باتیں پھیلی ہوئی تھی۔ میں یہ سب افواہیں سنتے ہوئے ہی بڑا ہوا تھا، اور اب میری بیوی بھی اسی درخت کے نیچے سونا چاہتی تھی، اس درخت کے ساتھ اکیلے وقت گزارنا چاہتی تھی۔ مگر کیوں؟ آخر کیا تھا اس درخت میں ایسا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس درخت پہ واقعی اسیب ہو کہ میری بیوی بھی اب وہی باتیں کرنے لگی تھی جو اس سے پہلے گھر کی عورتیں کرتی رہی تھیں۔ میں اس درخت کا راز جاننے کے لیے بے چین ہو رہا تھا۔ جب دوسرے سے تیسرے دن میری بیوی اس درخت کے نیچے سونے کے لیے اصرار کرنے لگی تو میں نے اسے غصے سے پوچھا کہ وہ ایسا کیوں چاہتی ہے۔ اس نے کہا اسے سکون ملتا ہے، چین آتا ہے، ایک ایسی میٹھی نیند آتی ہے جس کا وہ کہیں اور تصور بھی نہیں کر سکتی۔ میں ان سب من گھڑت باتوں سے تنگ آ چکا تھا۔ میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس درخت کا راز جان کر رہوں گا، اور اس کے لیے میں نے آج اس کے نیچے سونے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ آج میں نے چارپائی اس درخت کے نیچے بچھا دی، مگر پوری رات مجھے نیند نہیں آئی۔ ایک تو جگہ کی تبدیلی، اوپر سے مچھروں نے مجھے سونے ہی نہیں دیا۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ یہاں پر میری بیوی کو کون سا سکون ملتا ہے، مگر اس بات کا کوئی سرا میرے ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔
یہ سب واقعات مجھے اپنے بچپن کی یاد دلا رہے تھے اور میں رات کو سوچتے سوچتے اپنے ماضی میں کھو گیا۔ میرا نام جمیل ہے۔ میں اس وقت محض 12 سال کا تھا جب میرے باپ نے میری ماں کے عجیب و غریب رویے سے تنگ آ کر دوسری شادی کر لی تھی۔ یوں تو میری امی بھی بالکل ٹھیک ٹھاک تھیں، انہیں کوئی دماغی مسئلہ نہیں تھا، وہ ہر کام نارمل طریقے سے سر انجام دیتی تھیں، مگر ابو سے نہ جانے انہیں کیا چڑ ہو گئی تھی۔ وہ ان کے ساتھ ایک کمرے میں ایک چھت تلے رہنے پر راضی نہیں ہوتی تھی۔ اپنے کمرے میں سونے کی بجائے وہ جامن کے درخت کے نیچے سونا زیادہ پسند کرتی تھیں۔ میرے ابو اور دادوں نے ان کا علاج کروانے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، انہیں دم درود کروایا، کتنے ہی پیروں فقیروں کے پاس لے کر گئے۔ خاندان میں اس جامن کے درخت کے بارے میں عجیب و غریب باتیں مشہور ہو گئی تھی۔ سب کا کہنا تھا کہ اس جامن کے درخت کے اوپر ایک جن رہتا ہے جو میری امی پر عاشق ہو چکا ہے۔ اس گھر میں ابو کے علاوہ دادو اور میری پھپھو رہتی تھی۔ ہمارے خاندان میں لڑکیوں کا رشتہ خاندان سے باہر دینے کا رواج نہیں تھا۔ خاندان میں پھپھو کے جوڑ کا کوئی بھی رشتہ موجود نہیں تھا، اس لیے پھپھو کنواری ہی رہ گئی۔ وہ میری امی سے چند سال ہی بڑی تھی۔ وہ مجھ سے بہت زیادہ پیار کیا کرتی تھی، یوں تو کسی کو کچھ بھی نہیں کہتی تھی، مگر میں نے انہیں بارہا چھپ چھپ کر روتے ہوئے دیکھا تھا۔ ابو نے امی کے رویے سے تنگ آ کر دوسری شادی کر لی تھی۔ میری دوسری امی بہت ہی زیادہ سیدھی سادی سی خاتون تھی، وہ ہمیشہ اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ شادی کے شروع کے دنوں میں تو ابو بہت ہی زیادہ خوش رہتے تھے، ہر وقت ہنستے مسکراتے رہتے تھے، مگر پھر ان کی پریشانیوں میں بدتدریج اضافہ ہونا شروع ہو گیا تھا۔ میری چھوٹی امی بھی میری امی کے نقشے قدم پر چلنا شروع ہو گئی تھی۔ انہوں نے بھی ابو کے کمرے میں رہنے سے انکار کر دیا تھا۔ اب ان کی بھی یہی ضد تھی کہ وہ اس درخت کے نیچے سویا کریں گی۔ اب تو باقی خاندان والوں کے ساتھ ساتھ ابو کا بھی یقین ہو گیا تھا کہ اس درخت میں کچھ ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے بہت سے پیر و فقیروں سے اپنی ان دونوں بیویوں کا علاج کروانے کی کوشش کی، مگر انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ میری ان دونوں ماؤں کی ضد وہ چھڑوا نہیں سکے تھے۔ تنگ آ کر ابو نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس درخت کو ہی کٹوا دیں گے، مگر دادوں نے ان کے آگے ہاتھ جوڑ کر انہیں اس کام سے باز رہنے کے لیے مجبور کر دیا۔ دادوں کا یہ ماننا تھا کہ وہ جن بہت خطرناک ہے، وہ کہیں میرے ابو کو نقصان نہ پہنچا دے۔ ویسے بھی پھلدار درخت کو کاٹنا وہ برا سمجھتی تھی۔ ہم لوگوں کی زندگی اسی طرح سے عجیب طریقے سے بسر ہو رہی تھی۔ پھر کچھ وقت کے بعد میری چھوٹی امی کو ایک موذی مرض نے آ گھیرا۔ وہ بہت مختصر زندگی لکھوا کر آئی تھی۔ شادی کے 5 سال بعد وہ اللہ کو پیاری ہو گئی تھی۔ رفتہ رفتہ امی کا رویہ ابو کے ساتھ نارمل ہونے لگا۔ وہ اب اپنے کمرے میں ہی رہنے لگی تھی، اور جب کبھی ان سے یہ پوچھا جاتا کہ وہ جامن کے درخت کے نیچے کیوں سوتی تھی تو وہ حیران ہو کر سوال کرنے والے کے منہ کی طرف دیکھنے لگتی تھی، جیسے کسی نے انہونی بات کہہ دی ہو۔ وہ بھول چکی تھی کہ انہوں نے کبھی ایسا کہا تھا۔ یہ سارا معاملہ میری سمجھ سے تو باہر تھا، مگر پھر کچھ دنوں کے بعد ان کا رویہ ویسا ہی ہو گیا۔ وہ پہلے جیسی ہو گئی تھی، اسی درخت کے پاس ہی سوتی تھی۔ اوپر سے پھپھو کا رویہ بھی بہت ہی عجیب و غریب ہو گیا تھا۔ وہ اکثر رات کو تیار ہو کر میک اپ کر کے گھر میں پھرنے لگتی، گھنٹوں کمرے میں بند رہتی تھی، کبھی کبھی زور زور سے چلانے لگتی تھی، کبھی کبھی خوشی سے کہکے لگانے لگتی تھی۔ ان کی وجہ سے دادوں نے گھر کے دروازے کو رات کے وقت تالا لگانا شروع کر دیا کہ کہیں وہ دروازے سے باہر نہ نکل جائیں۔ ان کی عمر پریشانی میں گزر رہی تھی۔ ان کی جو عمر دوسروں سے خدمت کروانے کی تھی، اس عمر میں وہ اپنی بیٹی کی رکھوالی کر رہی تھی۔ یہ بہت دکھ کی بات تھی۔ میں شروع سے ہی اپنی ماں کی بجائے دادوں اور پھپھو کے قریب رہا تھا۔ مجھے امی کے پرسرار رویے سے تنگ پڑتا تھا۔ اوپر سے سب لوگ باتیں بھی اس قسم کی کیا کرتے تھے کہ میری ماں پر کوئی جن عاشق ہے، جس کی وجہ سے میں بھی ان سے دور دور رہتا تھا، کیونکہ مجھے ان باتوں سے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا۔ رات کو سونے سے پہلے میری ماں درخت کے آس پاس چکر کاٹتی تھی۔ اس کے بال کھلے ہوئے ہوتے تھے، چہرے پر میک اپ کیا ہوا ہوتا تھا، اور کبھی کبھی دونوں بازو کھول کر آسمان کی طرف منہ کر کے کھڑی ہو جاتی تھی۔ اس دن بارش کا موسم تھا، بہت تیز ہوا چل رہی تھی۔ میری ماں دونوں بازو کھول کر جامن کے درخت کے نیچے کھڑی تھی۔ ان کی آنکھیں بند تھی، بال ہوا کے دوش پر لہرا رہے تھے۔ ان کو دیکھ کر مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ میرے باپ نے 2 سے 3 بار کہا کہ بارش ہو رہی ہے، تمہیں ٹھنڈ لگ جائے گی، کمرے میں آ جاؤ، مگر وہ کمرے میں آنے کی بجائے وہیں کھڑے ہو کر زور زور سے چلانے لگی تھی۔ اس قدر تیز طوفان تھا، اور اوپر سے امی کی چیخیں بہت بلند تھیں۔ یہ سب چیزیں ماحول کو بہت پرسرار بنا رہی تھیں۔ میں ڈر کر دادوں کی گود میں دبک کر بیٹھ گیا۔ وہ پہلا دن تھا جب میں نے اپنے ابو کو بہت زیادہ غصے میں دیکھا تھا۔ انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، اور امی کو بازو سے کھینچ کر اندر ہال میں لے آئے۔ امی کی چیخوں کا سلسلہ بلند سے بلند تر ہوتا جا رہا تھا۔ وہ کسی بھی طرح سے قابو میں نہیں آ رہی تھی، اور مسلسل زور زور سے چلا رہی تھی۔ اب انہیں پے در پے ان کے منہ پر تھپڑ مارنے شروع کر دیے۔ وہ بھی یہ سب کب تک برداشت کرتے؟ آج ان کی برداشت ختم ہو چکی تھی۔
दादू ने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की, मगर आज उनकी बर्दाश्त की तमाम हदें ख़त्म हो चुकी थी। इस सब के बाद से अम्मी एकदम खामोश हो गई थी। वो ऐसी चुप हुई कि कई दिन तक उनकी खामोशी कायम रही। बहुत दिन के बाद वो चुप टूटी थी। फिर वो बिलक बिलक कर रोई थी। इनके रोने की वजह से दादू भी दुखी हो गई थी। मगर उसके बाद अम्मी ने उस दरख्त के आसपास फिरना छोड़ दिया था। वो अपने कमरे में दोबारा से सोना शुरू हो गई थी। अम्मी की तरफ से इत्मीनान हो गया था, मगर पुप्पो की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उनकी दीवानगी भी बढ़ती जा रही थी। दादू बिल्कुल भी सुख का सांस नहीं ले पा रहे थे। उनके लिए एक परेशानी ख़त्म होती थी तो दूसरी शुरू हो जाती थी। मैं ये सब देख देख कर बड़ा हुआ था। मैं भी नफ्सियाती तौर पर बहुत उलझ चुका था। इस वक्त मैं कॉलेज में पढ़ता था जब मेरी दादो फोत हो गई थी। तब मैं अपनी दादो के मरने पर बहुत ज़्यादा रोया था। अम्मी की दिमागी हालत बेहतर थी। वो कभी कभी इस दरख्त के नीचे सोने की जिद करती थी, जबकि मेरी पुप्पो अभी तक वैसी की वैसी थी, पुरसरार और खामोश सी। वो हर वक्त अपने कमरे में गुमसुम से बैठी रहती थी। अगर कभी कभी अच्छे मूड में होती थी तो अपने दोस्तों से मिलने के लिए चली जाती थी, मगर उनका ये मूड बहुत कम कम ही बनता था। मैं पढ़ लिख चुका था और अब्बू के साथ कारोबार में उनकी मदद करवाने लगा था। मेरी खालाजाद थी जिसको मैं बचपन से पसंद करता था। हम दोनों के दरमियान कोई भी जालिम सिमाश नहीं आया। शादी के शुरू का अरसा तो सुकून से गुजरा था, मगर इसके बाद मेरी बीवी की भी वही हरकतें शुरू हो गईं जो पुप्पो और मेरी अम्मी की थी। मैं सोच सोच कर पागल हो रहा था। हमारे घर में ये सब क्यों हो रहा था? इस सारी सूरत हाल से मुझसे ज़्यादा तो अब्बू परेशान थे। उन्होंने कहा, इस घर से ये दरख्त ही कटवा देते हैं। सारी मुसीबत की जड़ यही दरख्त है। ना ये होगा और ना मसला बनेगा। मगर ख़ानदान के बड़े बुजुर्गों ने हमें इस काम से बाज रहने को कहा। इनके ख्याल में इस दरख्त के ऊपर बहुत ताकतवर हवाई चीज़ें काबिज थी। अगर हम इस दरख्त को कटवाते तो वो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती थी। मगर इस सारे मसले से बचने की कोई सबील भी नज़र नहीं आ रही थी। मगर इस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी तमाम सोचों का रुख बदल कर रख दिया। मैं सुबह ऑफिस जाने लगा जब मेरी बीवी मेरे लिए नाश्ता लेकर आई। बहुत ज़ोरों का चक्कर आया था और वो बेहोश होकर गिर गई। मैं उसे उठाकर अस्पताल लेकर चला गया। जो डॉक्टर ने इंकशाफ किया उसे सुनकर मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई थी। मुझे डॉक्टर की बात पर यकीन नहीं आ रहा था। जब मैंने टेस्ट की रिपोर्ट देखी तो मुझे डॉक्टर की बात पर यकीन करना पड़ा। इस रिपोर्ट के मुताबिक मेरी बीवी नशा अमेज अद्वियात का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने लगी थी, जो इसकी नफ्सियात और दिमागी सेहत पर बहुत बुरा असर डाल रहा था। ये सब क्या था? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं इस बारे में किससे बात करता? भला मेरी बीवी क्यों ऐसी अद्वियात इस्तेमाल करने लगी? मेरे लिए यकीन करना मुश्किल था। मैंने एक दूसरी लेबॉर्ट्री से इसके टेस्ट करवाए। इनकी रिपोर्ट भी वही कह रही थी। मतलब कि अब तो शक की गुंजाइश ही नहीं रही थी। इसके दिन रात मेरे सामने थे। मैंने उसे कभी भी किसी किस्म की दवा इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा था। डॉक्टर ने मुझे सख्ती से हदायत की थी कि इन अद्वियात का इस्तेमाल तुरंत करवा दें, वरना इसकी याददाश्त ख़त्म होने का भी खदशा था और नर्वस सिस्टम बहुत बुरी तरह से मुतासिर हो चुका था। मैं थका हारा घर दाखिल हुआ। मुझसे घर वालों ने पूछा कि क्या हुआ है। मैंने उन्हें मामूली सी कमज़ोरी कहकर टाल दिया था। अब मैं उन्हें कैसे बताता कि डॉक्टर ने क्या कहा है। घर आने के बाद मैंने अपने कमरे की तलाशी ली थी। पूरा कमरा छान मारा था, मगर कहीं से भी कोई दवा के असरात नहीं मिले थे। और मेरी बीवी की हालत भी काबिल रहम थी। इसका तो मेरी अम्मी और पुप्पो से भी ज़्यादा बुरे हाल हो गया था। वो हर वक्त डरी डरी और सहमी सहमी सी रहती थी। अगले दिन उसके पेरेंट्स उसे देखने के लिए आए। उसकी हालत देखकर खाला मुझ पर गुस्सा करने लगी थी। उन्हें लगता था कि उनकी बेटी की हालत का मैं जिम्मेदार हूँ, मगर दर हकीकत मैं सारे मामले में बेकसूर था और बेगुनाह होते हुए भी पिस रहा था। सबकी जली कुटी खामोशी से सुन रहा था। मुझे एक बात की बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। मुझे कमरे से किसी किस्म की कोई दवा नहीं मिली थी, तो वो अद्वियात मेरी बीवी ने कहाँ पर छुपा कर रखी हुई थी। जाहिर सी बात है उसने किसी और के कमरे में तो नहीं छुपाई होंगी। बाकी स्टोर रूम और किचन ही बचता था। मैंने वो दोनों जगह भी छान मारी, मगर मुझे वहाँ से भी कुछ नहीं मिला था। इस दिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। मैं दोनों हाथों में अपना सर थाम कर बैठा हुआ था। इतने में मेरा दोस्त मेरे ऑफिस में आ गया। उसने मुझसे मेरी परेशानी का सबब पूछा। मैंने धके छुपे अल्फाज में उसे अपनी बीवी की तबीयत के बारे में बताया। ये सुनकर उसने मुझे कुछ दिन के लिए जगह तब्दील करने के बारे में कहा। ये मशवरा मुझे भी पसंद आया था, मगर मसला मेरी बीवी का था। उसे कायल करना बहुत मुश्किल था। वो मुझसे बहुत ज़्यादा डरी डरी रहने लगी थी। वो कैसे मेरे साथ अकेले कहीं और जाने पर तैयार हो सकती थी। मैंने बहुत मुश्किल से उससे इस बात के लिए कायल किया। हम कुछ दिनों के लिए शुमाली इलाका जात में आ गए। यहाँ पर खूबसूरत नज़ारों ने हम दोनों की तबीयत बड़ी खुशगवार कर डाली। हमें यहाँ आए हुए कुछ दिन ही हुए थे।
जब मैं अपनी बीवी की बदतदरीज होने वाली तब्दीली को नोट कर रहा था। ये तब्दीली बहुत खुशाइन थी। कितने टाइम के बाद मैंने सुख का सांस लिया था। मैंने अब्बू को कॉल करके यहाँ कुछ दिन मस्जिद रुकने की इजाज़त ले ली। आहिस्ता आहिस्ता उसका डर ख़त्म हो गया था। वो मेरे साथ यूँ हो गई थी जैसे शादी के शुरू दिनों में रहती थी। हम कुछ दिन मस्जिद वहाँ गुजार कर खुशगवार मूड में वापस आए थे। वापस आने के बाद वो एक दिन यहाँ पर रुक कर अपनी अम्मी की तरफ चले गए। सच शुक्र कि इस बार किसी किस्म का कोई हंगामा नहीं हुआ। मेरी हर रोज़ उसके साथ फ़ोन पर बात होती थी और उससे मिलने के लिए चला जाता था। सब कुछ ठीक जा रहा था। फिर 2-4 दिन के बाद वापस आ गई थी। ज़िंदगी मामूल की तरह चल रही थी, जब अचानक से उसका अंदाज और लहजा फिर से बदलने लगा। उसके हवासों पर फिर से खौफ तारी होने लगा। वो मुझसे यूं बुदकने लगी जैसे मैं कोई भूत हूँ। ये सारी सूरत हाल मेरे लिए तकलीफ दे थी। मेरा सुकून दरहम बरहम हो गया था। मैं सोच सोच कर पागल हो रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, इस सब को मैं कैसे रोकूं। सोचते सोचते एक नुक्ते पर आकर मैं चौंक गया। जब हम शुमाली इलाका जात में थे तब कुछ दिनों के बाद उसका रवैया बिल्कुल ठीक हो गया था। अपनी अम्मी के घर भी वो मेरे साथ बिल्कुल ठीक रही थी, और जब वो वापस घर पर आई तो कुछ दिन के बाद ही वो फिर से वैसी ही हो गई। अब उसे दौरे भी पड़ने लगे थे। वो ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगती थी। मेरे बारे में वो बातें करती थी जो मैं ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था। ये सब आखिर क्यों था? बचपन से ही पुरसरार हालात देखने के बावजूद मुझे जिन भूतों पर यकीन नहीं आता था, ये सब कुछ फ्रेब लगता था, एक धोखा लगता था। ऐसा लगता था जैसे सब कुछ अयां होते हुए भी कुछ पोशीदा है, कुछ नज़रों से ओझल है, कुछ है जो सामने है मगर फिर भी नज़र नहीं आ रहा। मुझे इसकी खोज लगा कर रहना था। अब मैंने एक फ़ैसला कर लिया, या आर या पार। अगर इस दरख्त पर आज सेब का साया था तो सबके मना करने के बावजूद मैंने वो दरख्त घर से कटवा दिया था। सबसे ज़्यादा मेरी बीवी ही रोई और चलाई थी। इसको देखकर ऐसे लग रहा था जैसे किसी करीबी की मैयत पर रो रही हो। महज एक दरख्त के साथ कोई कितनी जज्बाती वाबस्तगी रखता है। कुछ दिनों बाद उसकी तबीयत फिर से ख़राब होने लगी। उसे फिर से चक्कर आने लगे थे। चेहरा कमला कर रह गया था। रंग इस तरह से पीला फटक पड़ रहा था जैसे खून का एक कतरा भी उसमें मौजूद ना हो। इसकी हालत देखकर मैं बहुत ज़्यादा परेशानी में आ गया था। उसे उठाकर जब मैं अस्पताल में लेकर गया तो डॉक्टर ने मुझे बहुत ज़्यादा बेइज्जत किया। आपको मैंने मना भी किया था कि नदवायात का इस्तेमाल तुरंत करवा दें, मगर शायद आपको अपनी बीवी की ज़िंदगी प्यारी नहीं। मैं सर झुकाए इसकी बातें सुन रहा था। मेरे नसीब में तो जैसे सबकी बातें सुनना ही रह गया था। फिर उसे मैं शाम को वापस घर ले आया। मैंने हर जगह देख ली, मुझे कहीं से भी वो अदवायात नहीं मिले। फिर मेरी सोच का रुख बदल गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई मेरी बीवी को अदवायात इस्तेमाल करवा रहा हो और मेरी बीवी बेखबरी में मारी गई हो। अब मेरा वजदान कह रहा था कि ज़रूर इस बात में कोई सच्चाई है, मगर सवाल ये पैदा होता था कि मेरी बीवी की किसके साथ दुश्मनी है, कोई इसके साथ ऐसा क्यों करेगा। ये सवाल जितना पेचीदा था उसका जवाब भी उतना ही मुश्किल था। अब मैंने इस शख्स को ढूंढा था जो ये काम कर रहा था। मैंने घर में ज़्यादा आने जाने और मोहल्ले की औरतों को सबको नज़रों में तोल लिया था, मगर कोई भी मुझे ऐसा नज़र नहीं आता था जो ये काम कर सकता हो। मैं नज़रों ही नज़रों में सबको तोल रहा था। मेरा शक का दायरा सब पे फैला हुआ था, मगर मैं मुंह फाड़ के किसी को कुछ नहीं कह सकता था। जब तक मेरे पास कोई सबूत ना होता मैं किसी किस्म की कोई भी बात करने के काबिल नहीं था। मगर अब एक और बात भी मेरे जहन में आ रही थी। जो हालत मेरी बीवी की थी वही मेरी माँ की भी हो रही थी। मेरी पुप्पो भी नफ्सियाती तौर पर उलझी हुई थी। कहीं ऐसा तो नहीं था कि इनको भी ऐसी अदवायात के जरिए बीमार किया गया हो। अगर मेरी बीवी के साथ ऐसा हो सकता था तो यकीनन मेरी माँ के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। ये कोई ऐसी नामुमकिन बात नहीं थी। मैं अम्मी को बहाने से रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल लेकर गया था और उनके टेस्ट करवाए थे। तब रिपोर्ट्स ने मुझ पर जो इंकशाफ किया था उसे देखकर मैं हकदक रह गया था। डॉक्टर ने बताया था कि मेरी माँ के खून में भी ऐसी अदवायात के असरात पाए गए हैं, मगर तवील अरसे उनसे दूर रहने की वजह से वो असरात कम हो गए हैं। गोया मेरा शक सही साबित हुआ था। कोई ऐसा था जो कई सालों से मेरे ख़ानदान का दुश्मन था, जो तवील अरसे से हमारे पीछे लगा हुआ था, जो हमें खुशबाश और पुरसुकून नहीं देख सकता था। पहले इसने मेरे बाप की ज़िंदगी अजीरन किए रखी और मेरे साथ भी अभी तक उसने वही रवश अपनाई हुई है। इतनी तवील दुश्मनी पहले मेरे बाप के साथ और फिर उसके बेटे के साथ भी तब्दील हो गई। अब मेरे लिए इस शख्स का पता लगाना बहुत ज़रूरी हो गया था। वो हमें इसके अलावा और भी नुकसान पहुंचा सकता था। सारी ज़िंदगी हमने इन मामलात को असेब के साथ जोड़े रखा। हमें लगता था कि ये जिन्नात के असरात हैं। ये तो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि कोई अदवायात के इस्तेमाल के ज़रिए भी दूसरों की ज़िंदगी को खेल तमाशा बना सकता है। कितना शातिर खिलाड़ी था वो, कितना ही शानदार खेल खेला था उसने। बसात पर बिछे हुए तमाम मोहरे ही उसकी पसंद से चल रहे थे, उसकी मर्जी के मुताबिक काम सरंजाम दे रहे थे। जो सोच वो सबके दिमागों में डालना चाहता था वो अपनी सोच सबके दिमाग में डाल चुका था।
वो इतना चालाक खिलाड़ी था कि किसी का इसकी तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा था। ये तो उस दिन मैंने टेस्ट न करवाता तो मुझे भी हकीकत कभी पता न चल सकती। मैं भी इससे सारी जिंदगी असेब की कारस्तानी समझता रहता। मगर अब हालात बदल गए थे। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अपनी बीवी की हिफाजत करूंगा, किसी को भी इसे इस्तेमाल नहीं करने दूंगा। मैंने घर में आने वाले सब लोगों पर नजर रखनी शुरू कर दी। कौन कब आता है कब जाता है मुझे हर बात की खबर होती थी। फिर एक ख्याल के आने के तहत मैंने हॉल में कैमरे लगा दिए थे ताकि जो भी सरगर्मी हो मुझे पता चल जाए, और रात को मैं वो तमाम रिकॉर्डिंग देखकर सोता था। ये सारी बात मैंने अम्मी को और अब्बू को भी बता दी थी। ये खबर उनके लिए भी इतनी ही शॉकिंग थी जितनी कि मेरे लिए थी। वो भी इतना ही हैरान हुए थे जितना कि मैं हुआ था। मगर वक्त तो हाथ से रेत की मानित फिसल गया था। गया वक्त तो वापस नहीं आ सकता था, मगर हाल हमारे ही हाथ में था। हम अपने हाल को बेहतर बना सकते थे। अगर हमें बर वक्त अपने दुश्मन की खबर हो जाती तो हम उससे खबरदार रह सकते थे ताकि वो हमें मजीद कोई नुकसान ना पहुंचा सके। कैमरे में पुप्पो की भी उल्टी सीधी हरकतें देखता रहता था। वो हर रात को किसी दुल्हन की मानित सजी संवरी फिरा करती थी। ये सब हमारे लिए मामूल की बात हो गई थी। मैंने इरादा कर लिया था कि मैं पुप्पो को भी डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा, इनको भी डॉक्टर से इलाज करवाऊंगा ताकि वो भी ठीक हो जाएं। जब मैंने उनसे ये बात की थी तो वो हत्थे से ही उखड़ गई थी। तो मुझे पागल समझते हो? मैं जानती हूँ तुम लोग मुझसे तंग आ चुके हो। अस्पताल के बहाने तुम मुझे पागल खाने में छोड़कर आना चाहते हो ताकि हमेशा के लिए मुझसे जान छुड़वा सको। वो इतनी ज़्यादा जज्बाती हो गई थी कि मेरे लिए उन्हें संभालना बहुत मुश्किल हो गया था। मैंने उन्हें बहुत मुश्किल से बहला फुसला कर खामोश करवाया। अपनी बीवी के लिए मैंने एक फ़ैसला किया था। उसका खाना मैं अपनी निगरानी में ही बनवाता था और अपनी निगरानी में ही उसे खाना खिलाता था। मेरे इस इक़दाम से वो बेहतरी की जानिब गामज़न थी। उसे दौरे पड़ने कम हो गए थे। वो पहले की तरह रोती चिल्लाती भी नहीं थी। देखने में भी उसकी सेहत बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई थी। मैं अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। उसकी तकलीफ़ मुझे अपनी तकलीफ़ महसूस होती थी। मैं हर वक्त उसी सोच में गुम रहता था कि किस तरह से उसकी तकलीफ़ को ख़त्म करूं। एक बार मुझे अपने दुश्मन की खबर हो जाती जिसने मेरी हंसती बसती ज़िंदगी में आग लगाई थी तो मैं इसका वो हशर करता कि वो सारी ज़िंदगी याद रखता। उस दिन मेरी तबीयत ख़राब थी। मैं आराम करने की गर्ज से ऑफिस से घर जल्दी आ गया था। घर आते हुए मेरे रास्ते में एक क्लिनिक पड़ता था। इस क्लिनिक के बारे में अजीबोगरीब बातें मशहूर थीं। बहुत से लोगों का ये कहना था कि यहाँ पर गलत काम सरअंजाम दिए जाते हैं। मेरा कभी इसमें जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ, मगर आज मैंने अपनी पुप्पो को इसमें दाखिल होते हुए देखा तो मैं चौंक गया था। भला मेरी पुप्पो का इस क्लिनिक में क्या काम? हो सकता है इनकी तबीयत ख़राब हो, उन्हें इस क्लिनिक के बारे में कुछ मालूम ना हो। मैं भी घर ही जा रहा था। मैं गाड़ी साइड पर रोककर पुप्पो को घर लेकर जाने की गर्ज से अंदर चला गया। जब वो सामने से बाहर आ रही थी मुझे अपने सामने देखकर वो यकदम घबरा गए। उनकी ऐसी हालत हो गई थी जैसे उनकी चोरी पकड़ी गई हो। उन्होंने अपने हाथ में एक शॉपर पकड़ा हुआ था। उन्होंने जल्दी से वो शॉपर बैग में डाल लिया जैसे मुझसे छुपाना मकसूद हो। मुझे ये सब कुछ बहुत अजीब लगा, मगर वो मेरी पुप्पो थी। मैं उनके बारे में कुछ गलत तो नहीं सोच सकता था। घर आने के बाद जब मैंने उनसे ये पूछा कि वो इस क्लिनिक में क्यों गई थी तो साफ तौर पर घबरा गए। उन्होंने अपनी तबीयत खराब होने का भोंदा सा बहाना पेश किया। साफ लग रहा था कि टाल मटोल से काम ले रही हैं। मैं इस वक्त जिस सूरत हाल से गुजर रहा था मुझे हर छोटी से छोटी बात पर शक होने लगता था। पुप्पो का रवैया भी मुझे चौंका गया। मैं समझ गया था कि ज़रूर कुछ ऐसा है वो जो छुपा रही हैं। इसके बाद मैंने पुप्पो पर गौर करना शुरू कर दिया तो मुझ पे उनकी शख्सियत के बहुत से पहलू मुनकशिफ हुए थे। वो काफ़ी हद तक खुदगर्ज और बेहस थी। उनकी शख्सियत के बारे में जो चीज़ मैंने नोट की थी वो था सजना संवरना और किसी नई नवेली दुल्हन की तरह बंद सवर के रहना। वो जब सजी संवरी होती थी तब अकेले यूं शर्मा शर्मा कर बातें करती थी जैसे कि वो किसी के साथ हम कलाम हो। मैंने उन पर नज़र रखना शुरू कर दी। वो कहाँ आती जाती हैं, क्या करती हैं, गर्ज के मैं हर बात की खबर रखने लगा था। इस काम के लिए मैंने अपने एक मुलाजिम की ड्यूटी लगाई हुई थी। जो ही पुप्पो घर से बाहर निकलने लगती थी तो वो मुझे बता दिया करता था। आज जब पुप्पो घर से बाहर गई तब मैं घर पर ही था। मैं फ़ौरन से उनका पीछा करना शुरू कर दिया। वो इसी क्लिनिक में गई थी। इसी क्लिनिक के अंदर एक मेडिकल स्टोर था। वो इस काउंटर पर खड़ी कुछ खरीद रही थी। जब मैं इस बात पर चौंका, अब मेरा वहाँ पर रहने का मकसद ख़त्म हो चुका था। मैं सीधा घर आ गया। जो कुछ मैंने देखा और सुना था मुझे इस पर यकीन नहीं आ रहा था। भला मेरी पुप्पो ऐसा कैसे कर सकती हैं? मुझे अपनी आखिरी शक की तस्दीक करनी थी। मैं किचन के आसपास नहीं रहा था। शाम को जब वो किचन में दाखिल हुई तब मैं भी उनके पीछे किचन में चला गया। मेरे शक की तस्दीक हो चुकी थी और ये मंजर कैमरे ने भी रिकॉर्ड कर लिया था। कितने वक्त से मैं उस शख्स की तलाश में था जिसने हमारी ज़िंदगी अज़ाब बना दी थी। मैं सोचता था कि उसको ऐसी सज़ा दूंगा जो वो हमेशा याद रखेगा, मगर वो शख्स मेरे सामने था। वो कोई और नहीं, मेरी पुप्पो थी जिन्होंने पहले मेरे अब्बू की
और अब मेरी जिंदगी अजीरन बना रखे थे। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था। मुझे आंखों देखा झूठ लग रहा था, मगर अफसोस कि ये सच था। मैंने पुप्पो से ये सवाल किया कि आपने ऐसा क्यों किया, तो वो कहने लगी, मैं गैर शादीशुदा थी। जब तुम्हारी माँ को तुम्हारे बाप के साथ खुशबाश देखती थी तो मुझे गुस्सा आता था। अपनी तन्हाई वाली जिंदगी मुझे काटने को दौड़ती थी। मेरी शादी भाई साहब ने नहीं होने थी। खानदान से बाहर मेरी शादी करते उन्हें गैरत आती थी, मगर उन्हें मेरी तन्हाई नजर नहीं आती थी। मुझे इन पे गुस्सा था। जब मैं खुश नहीं थी तो मैं किसी को भी खुश नहीं देखना चाहती थी। फिर मैंने ये मंसूबा बनाया। ये ऐसी दवा है जिसको इस्तेमाल करने के बाद इंसान के जहन में जो बात डालो वो उसे हकीकत के रूप में नजर आती है। मैं तुम्हारी माँ को दवा इस्तेमाल करवाने के बाद तुम्हारे बाप से बदजन कर दिया करती थी। वो तमाम बातें सिर्फ उसके जहन में होती थी, मगर वो उन्हें सच समझती थी। इस तरह इस दरख्त पर उसे बहुत खूबसूरत इंसान नजर आता था जो महज उसका ख्याल था, और ये सब इस दवा का करिश्मा था। फिर मैंने तुम्हारी बीवी के साथ भी यही किया। तुमसे मुझे बेशक बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, मगर तुम्हारी बीवी भी एक औरत है, और मैं किसी भी औरत को शौहर की मोहब्बत हासिल करते देखती तो मेरे वजूद में आग लग जाती है। तब मेरा दिल करता है सारी दुनिया को तहस नहस कर दूं। पुप्पो की बातें सुनने के बाद मुझे अंदाज़ा हो गया था कि उन्हें दिमागी इलाज की ज़रूरत है। उन्हें कुछ अरसे के लिए मैंने अस्पताल में दाखिल करवा दिया। 2 साल के अरसे के बाद उनकी दिमागी हालत संभल गई। अब वो नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने लगी थी। मैं 2 बच्चों का बाप बन चुका हूँ। मैं अक्सर ये बात सोचता हूँ कि हम अपने फजूल से रस्म व रिवाज की वजह से किस तरह से अपनी ज़िंदगियों को खुद ही अज़ाब बना देते हैं। नाज़रीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।